जो अच्छा करते वो बढ़ जाते हैं। मगर ये कंपनी को ऑलरेडी क्या ऑफर थी उसको ठुकरा के देश के लिए, देश के लोगों को रोजगार देने के लिए इस मॉडल में आए हैं, उसका एक सबूत हवाई बातें नहीं, सबूत वो वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं। आप सब ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा, करोड़ों अरबों रुपए छोड़ के सर हमारे लिए आए। तो ये वीडियो हम देखते हैं, प्ले कीजिए सर। Our keynote speech speaker for today, and I would like to request Mr. Sanjeev Raina sir, who is the Chief General Manager and Head at Corporate HSCC, Bharat Petroleum Corporation Limited, an enthusiastic engineering graduate equipped with 30 years of industrial experience at both field and leadership level. He always peers into the operational safety with respect to civil, electrical and mechanical safety aspects. He always believed in continual cultural changes in organization for achieving HSSE global standards. He played a sheet anchor role in implementation of MB Lal recommendations across the organizations. And ladies and gentlemen, before moving towards his speech for today, I would like to tell you a very important detail about him, that it's his birthday today. So please, can I have a huge round of applause from all of you, wishing you a very, very happy birthday to Sanjeev Raina sir. So, thank you very much for giving me this opportunity to speak in front of such a wonderful gathering. I think most of the things have been talked about. Do I need to say something more? The lady from NTPC, she ended with something about the people. I can tell, I can start with the people. It's people above oil. Oil is not so important, people are more important. So, it's something I would like to start with that. Now, see, when we talk about safety, when we talk about HSSE, it reminds me, because time is very little, I'll be just trying to be making it a bit fast. So when we look at ESG, sustainability and safety put together, मेरे को एक ही चीज याद आती है, जान पे बनाई है। अगर जान पे बनाई है तो करना क्या है? What is needed to be done? And the fact is that the way we have traumatized this planet till date, what are we leaving for our progeny? What are we leaving for our children? Have we done something good? I feel I've been working for 31 years in this oil sector, and I feel I have done पूरे दुनिया के पाप हम ही लोगों ने किए हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे। तो मुझे एक ही पैराबल, जो पहले ज़माने में एक बात कहते थे, जान है तो जहान है, बट अभी दुनिया बदल गई है। अब जहान है तो जान है, प्लैनेट रहेगा तो हम रहेंगे, अगर प्लैनेट नहीं है तो हम नहीं रहेंगे। So our journey has now moved from not only profits. It's not profits at the cost of planet and people. If planet is not there, if people are not there, what are you going to do with the profits? Of no use. So if you want to earn profits, you have to take care of the people and the planet as well. That is why, because investors are very clever. They know that now people have understood what it means. They want to live, they don't want to die. So they have started putting premium on what you take from the market. They're looking at your ESG parameters in a very, very intricate manner. If HDFC has to give a loan to you, it tries to assess your ESG. It tries to see what are you doing in that direction. It tries to assess your credibility. And if your credibility is good, they give you a discount of maybe 0.25% on your rate of interest, which is crores of rupees. Investors like BlackRock, they ask you thousands of questions before investing in you. That means if you want to be in a business, then you have to be credible as far as ESG is concerned.
Please remember one more thing. Now, SEBI has also mandated first 1,000 companies have to provide not BRR report. Now it is business responsibility and sustainable responsibility report. And if you are not conducting your business in a responsible manner, believe me, you are going to have it in future. Because now, लीडरों की जान पे जब बनाई है तो सब कुछ होगा. अभी तक उनकी जान पर ही बनाई थी तो कुछ नहीं हो रहा था. Now globe is talking about COP26, COP27. COP26 प्रधानमंत्री ने पंचामृत की बात करी तो BPCL ने त्रिसूत्री प्रोग्राम बना दिया. ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन पावर and green innovation. So these became the three principles, three pillars of our organization in a journey to achieve net zero. Government of India said 2070 net zero. That means scope 1 plus scope 2 plus scope 3 net zero. We said by 2040 will be net zero, but scope 1 and scope 2 with an eye on scope 3. But let me be honest, I was today thrilled. When one of the persons approached me today, he said that he has some solution which can actually abate scope 3 emissions. I've told him, you'll have to give me proprietary rights if I start propagating your product. And if you're able to do it, you will be billionaire क्या trillionaire हो जाओगे. टॉप का वीडियो क्या बताया उन्होंने, सुना आपने? अगर इस प्रोडक्ट के आप हमको प्रॉपर्टी राइट देते हो तो आप मिलियनर नहीं, बिलियनर नहीं, ट्रिलियनर बन जाओगे. फिर भी वो प्रोडक्ट उनको ना देते हुए वो हमारे लिए लेके आए हैं. ठीक है, देश के लिए लेके आए हैं. मतलब ये वो नहीं है कि चलता नहीं तो कैसे भी चिपकाओ. ये तो अरबों खरबों की डिमांड है, मगर इसको देश के लिए, धरती माता के लिए, लोगों के रोजगार के लिए लाना है. तो मित्रों, इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊं, इस प्रोडक्ट की और कंपनी की जर्नी के बारे में मैं आपको बताऊं, उससे अच्छा जिसने ये देखा है, जिसने ये किया है, जिसने ये जिया है, उस व्यक्ति के मुंह से सुनने में कितना अच्छा होगा. सही है कि नहीं? वो व्यक्ति, हमारे जैसे लोगों का क्या होता है, आज एक आदमी मेरे से नहीं जुड़ा ना तो दूसरे दिन मैं छोड़ देता हूं. मगर वो आदमी 26 साल लगा रहा. 26 साल. कितने साल? 26 साल के बाद उन्होंने इस प्रोडक्ट का वर्ल्ड वाइड पेटेंट लिया, मगर हिम्मत नहीं छोड़ी, लगातार करते रहे. तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा डॉक्टर दीपक राणे सर का. जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार. भारत में एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट और एक क्रांतिकारी अपॉर्चुनिटी लाने का श्रेय हमारे डॉक्टर दीपक राणे सर को जाता है. तो दीपक राणे सर हमको उनकी जर्नी बताएंगे, प्रोडक्ट किस तरह से इंजिन्स पे बेनिफिट करता है वो बताएंगे. उसके अलावा ये प्रोडक्ट हमारी हेल्थ से कैसे जुड़ा है. आप में से नेटवर्क इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री से भी जुड़े हैं. बहुत लोग मुझे पता है, सर ऐसा कुछ प्रोडक्ट दो ना कि हेल्थ अच्छी हो जाए. मैं बोला ये प्रोडक्ट पहला वही काम करता है. तो बोलता अरे आप तो पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हो, हेल्थ की कहाँ आ गई. तो आज वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. तो मैं डॉक्टर दीपक राणे सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विस्तार से आज लोगों को बताए कि ये प्रोडक्ट आपके जीवन में कैसा बदलाव लाने वाला है. तो ओवर टू डॉक्टर दीपक राणे सर. थैंक यू सर, वेलकम सर. श्री स्वामी समर्थ. यहाँ पे आए हुए सभी लोग, मार्केटिंग में सब लोग दिग्गज है, सभी को नमस्कार. मैं स्टेज डेयरिंग वाला इंसान नहीं हूँ सर, थोड़ा डर महसूस होता है, पर बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ. आप थोड़ा समझ लीजिएगा, मेरे हिंदी में थोड़ा उर्दू मिक्स हो जाएगा तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है. तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपक राणे. हम
नासिक में रहते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ, जब हम छोटे थे तो हम बहुत साधारण घर से बिलोंग करते हैं। 2000 में मेरा इंजीनियरिंग पास आउट हुआ। 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक रास्ते के ऊपर पतंग बेचना, पटाखे बेचना और राखी बेचना, ये मेरा काम था। बताने के लिए कोई शर्म नहीं आती है मुझे, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, ठीक है। 2001 में इंजीनियरिंग होने के बाद हर बच्चे का एक सपना होता है, बड़ा बनना है, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उस टाइम पे 2001-2002 के समय में बच्चे लोग सीडेक का कोर्स करते थे, एपटेक या सीडेक का कंप्यूटर का कोर्स करते थे। 6 महीने के कोर्स करने के बाद यूएस में जाना है, अच्छी सैलरी पाना है, ऐसा सपना सबका होता है। वैसा मेरा भी था, पर वो पूरा नहीं हो पाया। पर उसी समय में कुछ प्रोफेसर्स ने, उनको जब मैंने पूछा कि मैं कुछ रिसर्च कर सकता हूँ क्या, और उसके लिए आगे का फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने एक ही कहा कि आगे बहुत फाइट होने वाली है, जो अभी लगभग हो रही है। मराठीमध्ये म्हणतात जीवाणू, आपण ज्याला म्हणतो, म्हणजे जैवयुद्ध होईल, ठीक है। तो ऐसे फाइट्स होने वाले हैं, और ऊपर से सबसे बड़ा फाइट होने वाला है एनर्जी सेक्टर के ऊपर, यानी क्रूड ऑयल के ऊपर वो फाइट होने वाला है। तो एक्चुअली पापा को हमारे श्री स्वामी समर्थ केंद्र परम पूज्य गुरुमौली श्री अण्णासाहेब मोरे, आमचे गुरु, हमारे गुरु, उनके द्वारा वनस्पति शास्त्रों का अभ्यास हमारे पापा जी ने 1992 से शुरू किया था। हालांकि उसका यूज़ कुछ नहीं किया था, पर वो ये एक पौधे से क्या होता है, या वो सीड से क्या होता है, या हम बोलते हैं नारियल के तेल से क्या होता है, खाने के तेल से क्या होता है, एरंडी तेल से क्या होता है, किस में क्या मिलाने से क्या होता है, ऐसा सब कुछ चीज़ें हमारे पापा को अच्छी खासी पता थी। तो इंडियन ऑयल में एक रिसर्च एनालिसिस्ट करके हमारे पापा के दोस्त थे, उनसे कुछ मार्गदर्शन मिला, और 2001 में मैंने एनर्जी सेक्टर पे काम करना शुरू किया। उस समय में आज जैसे हमारे यहाँ पे गूगल रहता है, उस टाइम पे याहू था, yahoo.com। तो हमारा अच्छा खासा दोस्त तो याहू ही होता है या गूगल ही होता है, जो हमें सर्च करके बताता है कि अमेरिका में क्या चल रहा है। हम तो वहाँ पे जाके नहीं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर हमें पता यहाँ पे ही पता चल जाता है। वैसे उसी टाइम पे याहू पे घंटों सर्च करने के बाद ये पता चला कि एनर्जी सेक्टर पे हम काम करेंगे तो आज लोकल लेवल पे हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी, एलएनजी, एलपीजी, ऐसे कुछ फ्यूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके हाइड्रोकार्बन के ऊपर हमें काम करना चाहिए, ऐसा थोड़ा सा सोचा, पर कहाँ से स्टार्ट करें, सामने सब अंधेरा ही था। जब स्कूल का पहला दिन होता है तो कुछ पता ही नहीं होता है, सामने तो सब अंधेरा ही होता है। सब जब टीचर कुछ सिखाते हैं तब कहाँ जाके 2-4 दिन बाद ABCD पता चलती है, Z तक तो पहले दिन तो पता ही नहीं चलता। वैसे जैसे ये अंकल है, इनके पास ये इंडियन ऑयल में काम करते हैं, अच्छे खासे पोस्ट पे हैं, इनको 10 बार फ़ोन करेंगे, कुछ किताबों के नाम पूछेंगे। ये BPCL के पास ये सर काम करते हैं, इनको जाके, ये इनके दोस्त है, इनको पूछेंगे कि भाई यार मुझे कुछ आप गाइड करो कि मुझे ये ऐसा ऐसा काम करना है एनर्जी सेक्टर पे। तो मुझे तब पता चला कि आप फ्यूल एडिटिव में काम करो, क्योंकि आज हम लोकल लेवल पे देखते हैं एज ए लेमैन में फ्यूल एडिटिव की कीमत कुछ नहीं है लोगों के मन में, क्योंकि आज पिछले 50-60 सालों में
बहुत सारी कंपनियों ने लोगों को खाली फंसाया है माइलेज के नाम पे। माइलेज बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर जो मेरे पापा के दोस्त थे उन्होंने बताया विदाउट फ्यूल एडिटिव आपको पेट्रोल मिलता ही नहीं। आज हम ईरान और इराक से जो क्रूड ऑयल लेते हैं, वो क्रूड ऑयल से हम जो पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, या जितने भी पीएनजी, सीएनजी, एलएनजी, जितने भी गैसेस निकालते हैं या फ्यूल्स निकालते हैं, वो निकालने के लिए फ्यूल एडिटिव्स डालने ही पड़ते हैं। जैसे ऑक्टेन बूस्टर हो गया, सीटेन बूस्टर हो गया, ऐसे बहुत सारे एडिटिव्स है वो डालने ही पड़ते हैं। तब कहाँ जाके 2001 में ये सब कुछ स्टोरी पता चली कि एंड कंक्लूजन पेट्रोलियम सेक्टर में, जो पेट्रोलियम सेक्टर का जो हार्ट है ना, हार्ट वो है एडिटिव्स। तो वो एडिटिव्स में हमें कुछ अच्छा करना है, ये सोच के काम शुरू किया। तो पहले 2003 में मुझे पहला फ्यूल एडिटिव मिला, हर्बल। उस टाइम पे मेरे पास मेरे पापा की एमएटी गाड़ी थी, मेरी बजाज सिटी 100 थी और जूनी मारुति 800 थी। तो समझो, मान लीजिए कि मुझे एक फ्यूल एडिटिव मिला। वो कैसे मिला? आज मैंने एक रेसिपी बनाया घर के अंदर। अपने जैसे गैस होता है, एक बर्तन रखा, उसके अंदर चाय डाली, चाय पत्ती डाली, शक्कर डाली, पानी डाला, दूध डाला और चाय बन गई। ये हो गई चाय की एक रेसिपी, बराबर। वो चाय बन गई ना। वैसी ही मैंने रेसिपीज एडिटिव्स की अलग अलग बनाई। वो बनने के बाद हमें टेस्ट करनी पड़ती है ना, शक्कर ज़्यादा हो गई क्या, चाय कड़वी हो गई क्या, दूध कम हो गया क्या, दूध ज़्यादा हो गया क्या। उसी हिसाब से मैंने एडिटिव्स के हज़ारों रेसिपीज़ बनाए, काउंट भी नहीं है, इतने रेसिपीज़ बनाए। और हर रेसिपी बनने के बाद मुझे ऐसा लगता था आज लॉटरी लगेगी। एडिटिव डालने के बाद 100 ml का पेट्रोल डालता था मैं गाड़ी में। वो गाड़ी के 2 व्हीलर में बाजू में माइलेज निकालने वाली एक बॉटल आती है मार्केट में, प्लास्टिक बॉटल रहती है, नीचे से एक कॉक रहता है, कॉक के नीचे एक पाइप रहता है जो हम कार्बोरेटर को लगा सकते हैं। तो 100 ml पेट्रोल उसमें डालने का और 1-2 बूंद, 3 बूंद या 1 ml पकड़ो, अंदाजे जो भी रहे, एडिटिव डाल के गाड़ी घुमाने की। तो वो समझो घर से निकलने के बाद समझो इगतपुरी जाएं, घोटी जाएं, जहाँ पे रास्ते में रुकेंगे, तो उस टाइम पे माइलेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा, माइलेज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो हज़ारों बार में फेल हो गया सर, पर मैं पीछे हटा नहीं। तो हमारे पापा जी हमेशा मुझे बोलते थे, तू रुकना मत, तू आगे चलता रहे। मराठीत म्हणतात ना, महाराज तुझ्या पाठीशी, तू काळजी करू नकोस, ऊपर वाला तेरे पीछे है, तू डरना मत, तू आगे बढ़। आगे आगे करते करते 2006 हो गया। ये टेस्टिंग्स रात को 2 बजे भी करनी पड़ती, दोपहर को 2 बजे भी करनी पड़ती। उस टाइम पे बारिश भी रहती थी, ठंडी हवा भी लगती थी, धूल भी लगती थी। बारिश जब रहती थी तो उस टाइम पे भी मैं जब बाहर निकलता था तो मम्मी डांटती भी थी, ये क्या कर रहा है तू, बंद कर, तुझे जुकाम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ताने सुन सुन के 2008 अगस्त को मुझे एक एडिटिव फाइनली मिला। 8 साल मेहनत करने के बाद वो एडिटिव मिला, जिसका रिजल्ट मुझे 32% आया सर। पर उस टाइम तक क्या हुआ था, ते म्हणतात ना, पुरावरून सगळं पाणी ओसरून गेलेलं होतं, तसं मेरे पापा का मैंने बहुत पैसा खर्चा कर दिया था। तो जो 29 अप्रैल 2009 को जब मुझे प्रोडक्शन स्टार्ट करना था, तब मेरे पापा ने मुझे पैसा देने से मना कर दिया।
कि नहीं अभी तू तेरे दम पे कर। तो फिर 17,000 रुपये मेरे सेविंग अकाउंट में थे। 13,500 के एल्यूमिनियम के बर्तन खरीदे। आज भी मेरे फैक्ट्री में वो लक्ष्मी है जो मेरी पहली परचेसिंग। जिस बर्तन से मैं 10 ml की बोतल भरता था, वो 650 रुपये का बर्तन आज भी मेरे पास है, जो मेरा फैक्ट्री का आई विटनेस है। फिर जब प्रोडक्शन पेट्रोल पंप के बाहर खड़े रह के बेचना था, तो जाहिर सी बात है फैमिली वाले लोग परेशान तो हो गए ना। एक इंजीनियर लड़का, शादी की उम्र हो गई, और क्या ये पेट्रोल पंप के बाहर लड़का खड़ा रह रहा है। बहुत ताने सुने। बोलते हैं ना, मराठी में एक कहावत है, खोटा शिक्का। खोटा शिक्का म्हणजे हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, यानी कुछ काम का नहीं है ये लड़का, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ऐसे फैमिली के शादी माहौल में ऐसा ट्रीटमेंट मिलता था। ठीक है ना, उस दिन वो भी कुछ ना कुछ करके दिखाएगा, वो एनर्जी मुझे मिलती थी मार्केट में से। तो 29 अप्रैल 2009 से 14 अक्टूबर 2011 बाय डेट में बता रहा हूँ सर, उस 2.5 साल में पेट्रोल पंप के बाहर सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे तक, 9 बजे तक रुक के जितना हो सके बॉटल बेचना, एडिटिव के बॉटल बेचना और उनसे रिव्यूज़ लेना। ऐसे करते करके हमारा स्टोरी स्टार्ट हुआ कंपनी का। और 2014 में श्रीनिवास इनोवेशन ने, यानी मेरी कंपनी ने, कंपनी की खुद की जगह ली 2 एकड़, 5,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन किया। लगभग अच्छा खासा सेटअप कंपनी का लगाया और जर्नी स्टार्ट हुई। और उसी समय 2014 का बताया मैंने, 2011 में लुब्रिकेंट्स भी स्टार्ट किया, जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, पोकलैंड, जेसीबीज, हाईवाज, ये सभी लुब्रिकेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का शुरुआत किया। आज अपने कंपनी का 13.5 एकड़ का लैंड है नासिक में, सिटी में। 2 एकड़ में कंस्ट्रक्शन है 22,000 स्क्वायर फीट का। लुब्रिकेंट का 30,000 लीटर प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे। फ्यूल एडिटिव्स का 1,25,000 लीटर का प्रोडक्शन कैपेसिटी है पर डे। और ARAI और ICAT 2022 में ICAT ने ये प्रोडक्ट टेस्ट किया, उसमें 61% पेट्रोल और 62% डीजल का सेविंग का रिपोर्ट मुझे मिला। वो रिपोर्ट मिलने के बाद, सर पॉलिटिकली ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर रिपोर्ट मिलने के बाद एक सपना था कि हम इंडियन गवर्नमेंट में टॉप पोजीशन पे किसी को जाके मिले। हर एक का सपना होता है ना कि भाई हम किसी को जाके मिले और वो प्रोडक्ट ले तो फिर अच्छा एक्सप्लोर हो पाए, पर नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं है। वो ऊपर वाला सिस्टम जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो डील हमने कैंसिल किया। सर ने अभी जैसा एक वीडियो दिखाया, वो एक आगे का एक स्टेटमेंट था सर, जो थोड़ा रह गया था। वो मिस्टर संजीव जी ने बाद में ये कहा कि ये जो रिसर्च जिन्होंने किया है वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में आए हैं, 2 जेंटलमैन फ्रॉम नासिक वगैरह वगैरह, त्यांनी ते सांगित, वो उन्होंने सब कुछ बताया। तो ऐसा मेरा ये जर्नी था और आज भी मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था। मुझे दिखावा पसंद नहीं है। आई एम वेरी सिंपल पर्सन, ऐसा सिंपल है सर। और ये जो प्रोडक्ट है
ये प्रोडक्ट के बारे में मैं यही कहूँगा कि ये दुनिया को बचाने वाला प्रोडक्ट है सर, सबसे। 2 रुपए का बिजनेस कम हो चलेगा, 2 रुपए कम मिले वो भी चलेगा, पर आज हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली 10 पीढ़ियों के लिए हम क्लीन ऑक्सीजन दे सके, जितने भी इंजुरीज हमें हो रही हैं उनको हम कैसे कम कर सके, इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। 2 प्रोडक्ट है, बायो मैनेजर इंजन हेल्थ टॉनिक पेट्रोल एडिटिव और बायो मैनेजर इंजन हेल्थ टॉनिक डीजल एडिटिव। हाँ, अभी ये प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट को इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी दिल्ली 9/3/2022 को ये हमें टेस्ट रिपोर्ट मिला। ये टेस्ट रिपोर्ट टाटा, महिंद्रा, टीवीएस, बजाज, होंडा ऐसी जितनी भी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके पास उनके गाड़ियों के लिए जो टेक्निकल टेस्टिंग रिपोर्ट लीगल ऑथराइजेशन चाहिए, वो रिपोर्ट जैसे उनके पास है वैसे हमारे कंपनी के पास है। उतनी कैपेसिटी भी नहीं थी, फाइनेंशियल बहुत लगता है इसमें, पर कुछ ना कुछ एडजस्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने 3 गाड़ियों पे टेस्टिंग करी। पहले पेट्रोल की 2 गाड़ियाँ, पहली गाड़ी मोपेड जो विदाउट गियर वाली एक्टिवा, और दूसरी पैशन गाड़ी जो पेट्रोल की है, पैशन गियर वाली, और तीसरी इंडिका गाड़ी डीजल व्हीकल इंडिका। अभी इसमें सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट्स हैं जो हम आपको लीगली दिखा रहे हैं। ये सर्टिफाइड है, वेबसाइट पे डाउनलोडेबल फॉर्मेट में 11 पन्नों का रिपोर्ट ओरिजिनल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईकैट के वेबसाइट पे भी ये ऑथेंटिकेट रिपोर्ट आपको मिलेगा। इसमें जो बताया गया है, पहला गाड़ी है विदाउट एडिटिव स्कूटर एक्टिवा, उन्होंने रन 1 पहला टेस्ट किया विदाउट एडिटिव, 39 का माइलेज आया। आज आप देख रहे हो कि जितनी भी एक्टिवा गाड़ी है आज मार्केट में 35, 38, 39, 40, 42, 45, चलो मैक्सिमम 45, वहाँ तक माइलेज एक्टिवा का सबको मिलता है। इज इट क्लियर? पर यहाँ पे एडिटिव डालने के बाद विथ एडिटिव 65 का माइलेज आया है सर। ठीक है। दूसरा व्हीकल है मोटरसाइकिल पैशन गाड़ी विदाउट एडिटिव रन 1 48.2 यानी 48.8, ऐसे 2 बार उन्होंने माइलेज निकाला। मैं बोलता हूँ मोटा मोटा 50 पकड़ो, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। पर वही एडिटिव डालने के बाद 78 का माइलेज आया। तीसरा व्हीकल है पैसेंजर कार डीजल, रन 1 18 का माइलेज है और रन 2 18.4 का माइलेज है विदाउट एडिटिव, और वही विद एडिटिव 29 का माइलेज है और 30 का माइलेज है। आज हम ये जो माइलेज आपको बता रहे हैं, हम हमारी बात नहीं कर रहे, हम नहीं बता रहे। आज आईकैट आपको ये सब कुछ बता रही है, हम नहीं बता रहे, ठीक है। अभी ये माइलेज बढ़ता कैसे है, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। माइलेज बढ़ता यहाँ तक बात ठीक है, पर बढ़ता कैसे है? तो पहली बात है, 4 व्हीलर में पेट्रोल और डीजल व्हीकल में इंजेक्टर्स होते हैं, जहाँ से
इंजन के अंदर पेट्रोल और डीजल थ्रो होता है। तो आज अब देखते हैं मार्केट में E20 पेट्रोल आया है, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। ठीक है, गाड़ियों को कुछ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं जैसे लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो हम इसके ऊपर सॉल्यूशन लाए हैं। इंजेक्टर क्लीन होता है, इसकी वजह से इंजन के अंदर का इंजेक्टर है वो क्लीन होता है। उसके बाद में क्लॉग प्रिवेंशन, यानी इंजेक्टर के अंदर जो क्लॉगिंग होता है यानी जंग लगता है, जंग लगने की वजह से इंजेक्टर चोकअप होने की वजह से स्प्रे स्लो होता है, इसकी वजह से आपकी गाड़ी पिकअप नहीं देती है। ठीक है, अगर यही एडिटिव्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जंग जड़ से निकल जाता है, उसके अंदर से जो कार्बन है वो पूरा निकल जाता है, इसकी वजह से आपकी गाड़ी फटक से उड़ जाती है, मतलब पिकअप बढ़ जाता है। सिंपल। वॉल डिपॉजिट रिमूवल, अभी इंजन के पिकअप बढ़ने का दूसरा एक कारण ऐसा है, इंजन के अंदर वॉल होते हैं। टू व्हीलर इंजन में सिंगल सिलेंडर में 2 वॉल होते हैं, मल्टी सिलेंडर में मल्टीप्लिकेशन में 2-2 वॉल बढ़ते हैं, यानी 2 सिलेंडर हो गया तो 4 वॉल हो गए, 3 सिलेंडर हो गया तो 6 वॉल हो गए। अभी ये जो वॉल है ये कार्बन की वजह से और गम की वजह से, गम मतलब चिकनाट वाला एक पदार्थ होता है जो पेट्रोल की वजह से वो तैयार होता है, वहाँ पे आधा जलता नहीं है, वो गम की वजह से वॉल प्रॉपर क्लोज नहीं होते, और क्लोज ना होने के कारण आप जब एक्सीलेटर दबाते हो उस टाइम पे पेट्रोल तो अंदर जाता है पर वो जलता नहीं है, वो ना जलने की वजह से आपको फिर से पेट्रोल अंदर डालना पड़ता है, तब गाड़ी उठती है। और इसी समय में अगर ये हम वॉल अगर पूरा क्लीन कर दे, उसके ऊपर का जंग निकाल दे, कार्बन डिपॉजिट निकाल दे, और सबसे अहम चीज़ गम, अगर जो क्या बोलते हैं गम निकाल दे, तो वॉल 100% क्लोज होता है। अगर 100% क्लोज हुआ तो आज यहाँ पे कोई अगर मैकेनिक भाई साहब अगर आए होंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि अगर वॉल 100% क्लोज हुआ तो आपकी गाड़ी 100% इफ़िशेंसी देती है। इसका एक उदाहरण देता हूँ गाउठी लैंग्वेज में। आप नई गाड़ी लेते हो, घर तक लेके जाते हो, तो आपको गाड़ी का पिकअप बहुत बढ़िया मिलता है, 2 महीना 3 महीने तक पिकअप बहुत अच्छा मिलता है। वही 2 साल बाद 3 साल बाद पिकअप थोड़ा करके ऐसे डाउन हो जाता है। तो आप जब एक्टिवा गाड़ी लेते हो, फॉर एग्जांपल एक्टिवा कंपनी ने या आईकैट ने वो गाड़ी का माइलेज दिया हुआ है 59, मिलता है आपको 40, तो 19 गया कहाँ? आपने कभी किसी को पूछा 19 गया कहाँ? 19 का किलोमीटर का जो माइलेज है वो गया कहाँ, पूछा आपने? नहीं पूछा। इसका ये आंसर यहाँ पे है। अब किसी भी गैरेज मैकेनिक को जाके पूछिए या शोरूम के ओनर को जाके पूछिए, वो आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। वॉल डिपॉजिट अगर क्लीन हो गया तो आपके गाड़ी का पिकअप इमीडिएटली बढ़ जाता है और माइलेज भी बढ़ता है। बाद में है E20 पेट्रोल की वजह से आज हम देख रहे हैं पेट्रोल के टंकी के अंदर पानी जम रहा है। किस किस को लोगों को पता है कि पेट्रोल के अंदर पानी जम रहा है? हाथ ऊपर करिए थोड़ा बहुत। हाँ ठीक है, बहुत हो गया। तो अभी पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और पेट्रोल की डेंसिटी कम है, मतलब पेट्रोल का वजन हल्का है, पानी का वजन ज़्यादा है। तो पेट्रोल और पानी का मिश्रण रहे तो पानी नीचे बैठता है, पेट्रोल ऊपर रहता है। यहाँ तक बात क्लियर? तो जाहिर सी बात है पेट्रोल के अंदर अगर पानी मिक्स हो जावे या यहाँ पे रह जावे तो पानी अगर नीचे रहे तो पेट्रोल टंकी के अंदर फ्यूल पंप अगर रहेगा 4 व्हीलर में, पेट्रोल की टंकी है पीछे, ठीक है, और इंजन है आगे, और इंजन तक अगर मुझे टंकी से पेट्रोल लाना है
तो टंकी के अंदर एक छोटा सा फ्यूल पंप होता है, थोड़ा इतना बहुत होता है, जो टंकी के अंदर बॉटम लेवल पे फिट होता है। और वो अगर पानी के नीचे अगर डिप रहा तो जाहिर सी बात है आपका ये जो पंप है ये डैमेज होगा, फ्यूल पंप डैमेज होगा। आपको डेमो भी दिखाया जाएगा। तो ये जो फ्यूल पंप है, आज अगर आप देखते हैं अल्टो गाड़ी है, सबसे छोटी कार आज अब मार्केट की अल्टो कार, अगर आप अल्टो कार का अगर आप फ्यूल पंप लेने जाएंगे कम से कम 50 से 55 हज़ार रुपये का फ्यूल पंप है, सबसे छोटी गाड़ी। और जैसी जैसी गाड़ी बढ़ेगी वैसा वैसा फ्यूल पंप का कॉस्ट बढ़ेगा। तो आज आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फ्यूल पंप भी डैमेज बार बार हो रहे हैं। आप पूछ लीजिएगा, इंजन के अंदर जंग लग रहा है, वॉल स्टिकिंग हो रहे हैं। तो ये सब कुछ सिस्टम, पूरा इंजन जो है वो अगर अंदर से 100% अगर क्लीन हो जाएगा तो आपकी गाड़ी जैसी नई गाड़ी थी ना, जब आपने नई ली थी शोरूम से, वो पिकअप आपको मिलेगा, वो फायरिंग मिलेगा और वो माइलेज मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत में एक्टिवा ली थी तो आपका 55 का गाड़ी का माइलेज था एक्टिवा का, और थोड़ा थोड़ा करके करके वो 40 तक आ गया एक 2-3 साल में। वही गाड़ी अगर ये एडिटिव अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको वो माइलेज रिकवर करके मिलता है, ये पॉइंट है। और दूसरा, पूरा इंजन क्लीन होने की वजह से गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो भी कम हो जाता है और इंजन की लाइफ भी बढ़ती है। अभी ये इमेजेस फॉर्मेट में कुछ दिखाया गया है, जहाँ पे आज हम देखते हैं इंजन के अंदर पिस्टन ऐसा होता है जिसके ऊपर टॉप पोर्शन फ्लैट होता है, और वहाँ पे देखिए यहाँ पिस्टन के ऊपर है ना पूरा गड्ढा हुआ है, यानी मेटल पानी ने खा लिया है। E20 पेट्रोल के अंदर पानी की वजह से ये ऐसा पूरा मेटल पूरा खा गया है और पिस्टन रिंग पूरे जाम हो गए हैं। इसकी वजह से इंजन के अंदर आवाज़ें आने शुरू हो गए और माइलेज ड्रॉप हो गई। यहाँ में अगर आप एडिटिव अगर आप पूरा इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरा पिस्टन जो इंजन का अंदर का वो पूरा क्लीन हो जाएगा, और क्लीन होने के बाद आपको वैसा पिस्टन मिलेगा। और जो पिस्टन रिंग्स है वो प्रॉपर मूव होगी, और मूव होने के कारण प्रॉपर कॉम्प्रेशन, मतलब एयर और फ्यूल रेशो का कॉम्प्रेशन रेशो प्रॉपर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा, और प्रेशर डेवलप होने के कारण आपकी गाड़ी का पिकअप एकदम मस्त बढ़ेगा। नेक्स्ट आगे है स्पार्क प्लग। आजकल देख रहे हैं सुबह गाड़ी स्टार्ट होने को दिक्कत आ रही है। तो जो दिक्कत आ रही है उसकी वजह यह है कि कार्बन, अपने स्पार्क प्लग के ऊपर कार्बन जम रहा है। वो कार्बन ना जमने के लिए अगर आप एडिटिव का इस्तेमाल करेंगे तो स्पार्क प्लग के ऊपर का जितना भी कार्बन है वो पूरा हट जाएगा, जंग है पूरा हट जाएगा, और आपके गाड़ी का जो स्ट्रोक वो प्रॉपर बैठेगा, जिसकी वजह से आपका माइलेज इंप्रूव होगा। नेक्स्ट, अभी आप डेमो तो वैसे देखेंगे ही सब लोग, पर E20 पेट्रोल की वजह से, जैसे इथेनॉल एक हाइड्रोस्कोपिक लिक्विड है, आज गन्ने के मोलाइसिस से बनने वाला ये इथेनॉल अल्कोहलिक लिक्विड है। 2 गुणधर्म है उसके, एक है अल्कोहलिक और दूसरा है हाइड्रोस्कोपिक। अल्कोहलिक मतलब एसिडिक, और हाइड्रोस्कोपिक मतलब हवा से नमी खींचना और उसका पानी में कन्वर्जन करना, उसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक। तो पहले है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक ये एक एसिडिक लिक्विड होने के कारण मेटल के ऊपर उसका रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद पेट्रोल के टंकी के अंदर के ये पार्ट्स ऐसे जम रहे। नंबर 2, इंजन के अंदर पिस्टन, सिलेंडर, पिस्टन रिंग, कैम, क्रैंक शाफ्ट, कैम रोलर, ऐसे सभी पार्ट्स को जंग डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। ये एडिटिव क्या काम करता है? जंग पूरा जड़ से निकाल लेता है, क्योंकि ये एडिटिव में एंटी करोजिव एजेंट फॉर्मुलेशन ऑलरेडी इसमें इन्वॉल्व है। एंटी करोजिव एजेंट इसमें इन्वॉल्व है।
अभी आगे है इंजेक्टर क्लीनिंग। जैसे मैंने आपको बताया, आप देख रहे हो जैसा यह क्लीन इंजेक्टर है, इसके अंदर 7 छेद है, 7 छेद, जैसे बालों से छोटे डायमीटर के छेद है, जिसके अंदर से पेट्रोल या डीजल थ्रो होता है इंजन के अंदर। और जाहिर सी बात है कि वही छेद यहाँ पे देखो पूरे चोकअप हो गए हैं, यानी मुंह उसका पूरा चोकअप हो गया है और कार्बन ऐसे डिपोजिशन ऊपर हो गए। आज एक एक जो इंजेक्टर है 20-20, 22-22 हजार, 30-30 हजार रुपए का एक इंजेक्टर है। आप थोड़ा देखिए, एजुकेशन लीजिए, मैकेनिक को पूछिए, सबसे महंगा आइटम ये है और ये भी काम पे आ रहे हैं अभी। तो ये एडिटिव डालने के बाद इंजेक्टर जो है ये पूरे क्लीन हो जाते हैं सर, 100% क्लीन हो जाते हैं। ये क्लीन होने के कारण आज अगर आप नए लेने जाएंगे तो 70-80 हजार रुपए से ऊपर मिलते हैं कमजोर, ठीक है। वही अगर इसके रिपेयरिंग करते जाए तो 11-11 हजार रुपए का एक का रिपेयरिंग का खर्चा है। यानी ऐसा पकड़ के चलो मोटा 40 हजार रुपए उसका रिपेयरिंग का खर्चा है। हमें वो भी नहीं करना है, एक ही एडिटिव में ये सब कुछ हो रहा है। आप समझो मेरी बात। आगे वॉल का मैंने बताया, यही वॉल यहाँ पे स्टिक होता है, ये बॉर्डर पे। ये 100% अगर प्रॉपर चिपकता रहेगा इंजन के अंदर तो पावर प्रॉपरली बढ़ेगा, जैसे नई गाड़ी थी। पर अगर इसके ऊपर इतना कार्बन जमेगा तो जाहिर सी बात ये प्रॉपर क्लोज नहीं होगा। ये क्लोज नहीं होगा तो पावर लॉस होगी, इंजन के अंदर की पावर लॉस होगी, और लॉस होने के कारण इंजन में ज्यादा पेट्रोल डालना पड़ेगा पिकअप बढ़ाने के लिए। इसीलिए हमें पावर लॉस रोकना है। तो हम ये अगर वॉल को क्लीन कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारा इंजन के अंदर का पावर लॉस कम हो जाएगा। ये हो गया कार्बोरेटर। वॉल अगर प्रॉपर क्लोज नहीं होंगे तो पूरा धुआं रिटर्न बैक वॉल के अंदर से कार्बोरेटर के अंदर आएगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे कार्बन डिपॉजिट जमा हो रहे हैं। हमारा अपना एडिटिव क्या काम करता है, कार्बन डिपॉजिट होने ही नहीं देता है। इसके कारण हमें कार्बोरेटर ऐसा क्लीन मिलता है हमेशा। फ्यूल पंप है, जो मैंने पहले बताया, टंकी के अंदर फ्यूल पंप जो जंग लग रहा है फ्यूल पंप को, ये जंग भी पूरा निकल जाएगा। आज ये फ्यूल पंप की कॉस्ट 70 से 80 हजार रुपए फ्यूल पंप की कॉस्ट है हर गाड़ियों की, जो हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट आगे जो फिल्टर है ये सबको पता है। अभी हम डेमो करेंगे तो लोगों को एक उसका भी आइडिया आ जाए। सोनम सर आइए, राजकेश जी आप भी आइए। ये एक बॉटल है जिसमें 0 से लेके 100 का मार्किंग है, ठीक है। एक मिनट, E20 पेट्रोल यानी इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, आज पूरे भारत में E20 पेट्रोल ही मिलता है, ठीक है, हर पेट्रोल पंप पे। E20 यानी इथेनॉल फैक्ट्रियों में बनता है, रिफाइनरी में जाके वो पेट्रोल में ब्लेंड होता है 20%, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। टेक्निकली ये देश के लिए अच्छा है क्योंकि ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज पैसा बचाता है। दूसरा, ये हमारे पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को भी बचाता है। तीसरा, इसके कारण हमको थोड़ा पेट्रोल सस्ता पड़ता है। तो देखा जाए तो ये अच्छा है, मगर फिर भी इस पर बहुत वाद विवाद चल रहे हैं, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट चल रही है। इसके पीछे का कारण सर ने अभी बताया, बट जो टेक्निकल लोग नहीं है उनको समझ में नहीं आया होगा, तो हम एक डेमो करके बताएंगे। ये एक बॉटल है, इसमें यहाँ पे 0 का मार्किंग है, ऊपर 100 का मार्किंग है, और 0 के नीचे थोड़ी सी जगह है। तो हम 0 तक इसमें पानी डालेंगे। इसको खोलिए, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको आगे तो
ये देखिए हमने 0 तक पानी डाला है। अब 0 से 100 तक हम इसमें पेट्रोल भरेंगे, ठीक है। पेट्रोल की बोतल लीजिए उधर से, कर दो सर, डालिए। 100 का मार्किंग तक अभी ये पेट्रोल पंप, जो भी पेट्रोल पंप आपके वहाँ हो वहाँ से लेके, हमने कोई स्पेशल पेट्रोल लाया नहीं है। ये आपको बॉटल है वहाँ पे, जिसको डेमो करना हो ले जा सकता है, अपने लेवल पे डेमो कर सकता है। 100 तक भरिए, बस बस बस, ठीक है। अभी इसको बंद कीजिए राजकेश जी, अच्छे से इसको शेक कीजिए, 2 मिनट तक शेक कीजिए। मित्रों होता क्या है, जैसे सर ने बताया कि इथेनॉल पानी को खींचता है या पानी बन जाता है कभी, कौन सी परिस्थिति में, अगर उसमें मॉइस्चर या पानी मिला तो, नहीं मिला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मिल गया तो प्रॉब्लम है। अब ये क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको। ये देखिए हमने कहां तक पानी डाला था, अभी ये कहां पहुंच गया, ऑलमोस्ट 20 तक। ये 20% क्या है, इथेनॉल। तो अगर किसी गाड़ी में कोई कारण से पानी मिक्स हो गया और उसमें इथेनॉल वाला पेट्रोल होगा, तब आपकी गाड़ी में ये होता है। और जब ये आपकी गाड़ी के इंजन में जाता है, टैंक पे पड़ा रहता है, तो सर ने जो चीजें बताई, तो ऐसी समस्या चाहे हो चाहे ना हो, दोनों ही केस में हमारा एडिटिव बहुत बेहतर काम करता है। यस। तो सर अभी सर ने बताया हमको वो इसके इंजन के फायदे बताए, बट मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसकी ये इंजन नहीं है, इंजन के फायदे के लिए बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ देश के फायदे के लिए बना हुआ प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए ये बहुत काम का है। और ये कैसे है ये भी बताएंगे, और उसका प्रूफ, सर्टिफिकेशन, मतलब जो पोल्यूशन रिपोर्ट है वो भी बताएंगे। तो सर शुरू कीजिए प्लीज, थैंक यू। होने के बाद किसी को देखना हो तो देख सकते हैं। आज हम देखते हैं गाड़ियों से जो धुआं निकलता है। हम 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारे घर के बाहर जहाँ पे भी सिग्नल होता होगा, वहाँ से हम पैदल गुजरते थे तो हमें अच्छा लगता था। वही सिग्नल से आज हम 2 मिनट खड़े रहेंगे तो क्या होता है, हम नाक बंद कर लेते हैं, यानी नाक के ऊपर हाथ रख ले, मुंह पे ऊपर हाथ रखते हैं, बराबर। आप सोचिए ना सर कि आज छोटे बच्चे वैन से जाते हैं, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो तो पैदल भी जाते हैं, वो क्या करेंगे बताइए आप। तो जाहिर सी बात है हमें उसके ऊपर भी विचार करना है। पैसे कमाना ये बात अलग है, प्रोडक्ट बेचना ये बात अलग है, बिजनेस करना ये बात अलग है, पर हम ये दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा करके जाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पे मीटिंग के लिए आए हैं, ठीक है। आज हम देखते हैं सर कि हमारे पंजोबा, मतलब दादाजी के दादाजी, परदादाजी, उनका उम्र 95, 100, 105 था। दादाजी का उम्र 90, 93 ऐसा कुछ था। पापा जी का उम्र 75, 80, 85 था, ठीक है। सर जी आप तो ऑलरेडी 70 तक टच हो गए, 62, ठीक है, हाँ 71, धन्यवाद सर। तो कुछ लोग यहाँ पे 70 क्रॉस हो गए, हमारे जैसे लोग अभी तक 46 में है। तो हमारे पापा जी 75, 80 तक गए, हम 65, 60 तक, 70 तक जाएंगे कि नहीं पता नहीं, ये सबको पता है सर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा है तो हमारे बच्चे कहाँ तक जाएंगे, हमने कभी सोचा ही नहीं, हमें तो स्कूल में वैसा पढ़ाया भी नहीं, कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ठीक है। दूसरा,
दादाजी के टाइम पे किसी को कैंसर पता नहीं था, हार्ट अटैक पता नहीं था, ब्लड कैंसर पता नहीं था, डायबिटीज पता नहीं था। आज 12 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक पता चल गया, 6 महीने के बच्चे को भी कैंसर पता चल गया। ऐसा क्यों? हम क्रॉस चेक नहीं कर पाएंगे ये इसके लिए? हम तो गूगल पे बहुत कुछ ढूंढते हैं। हाँ, आपने कभी ये भी नहीं सोचा कि यार धूप के समय में, मैं जब छोटा था तब धूप के समय में धूप ही गिरती थी, और बारिश के समय में बारिश गिरती थी, और ठंडी के समय में ठंडी गिरती थी। अभी धूप के टाइम पे बारिश, और बारिश के टाइम पे धूप, और ठंडी में बारिश। ऐसा सब उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? और तीसरा, लोग बोल रहे हैं हिमालय पिघल रहा है, हिमालय पिघल रहा है। तो क्यों पिघल रहा है? क्वेश्चन का आंसर नहीं, खाली एक ही सेंटेंस है, ग्लोबल वार्मिंग। बस, क्या? ग्लोबल वार्मिंग। और उसका रीजन क्या? पोल्यूशन। अरे पोल्यूशन में एक्चुअल में क्या है, हमें वो देखना है, आज वो सीखना है। थोड़ा सा सीख लेंगे, धंधा बाद में देखेंगे। ठीक है सर, थोड़ा आगे लीजिए। हाँ, पीछे लाइए, पीछे 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 और पीछे। हाँ, आज हम गाड़ी से जो धुआं निकाल रहे हैं, पिछले 50 सालों से मैं समझो 2 व्हीलर चला रहा हूँ, जितना धुआं मैंने बाहर निकाला गाड़ी से अंदर से, उसमें से जो CO2 बाहर निकला, उसकी वजह से कैंसर डेवलप हो रहा है। आगे उसका रीजन मैं देता हूँ, पूरा प्रूफ के साथ देता हूँ। नेक्स्ट, अब खून में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। 65% हमारे खून में CO2 ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए था। हमारे खून में ऑक्सीजन चाहिए था, वहाँ पे CO2 65% आ चुका है। इट्स अ प्रूफ। थर्ड, नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। आज हम देख रहे हैं लंग्स और किडनीज के इश्यूज बढ़ रहे हैं। वो किसकी वजह से बढ़ रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बढ़ रहे हैं। यानी लंग्स और किडनीज के इशू कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, इसके सब प्रूफ दूंगा मैं आगे आपको। हार्ट अटैक, हमारे गाड़ी से निकलने वाला जो धुआं था, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स है। वो हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स हमारे सांस के अंदर जाने की वजह से हार्ट अटैक हो रहे हैं। वो हम 90% कम कर सकते हैं। वो कैसे, बताता हूं आगे। नेक्स्ट, रिड्यूस इम्यूनिटी पावर, रिड्यूस एज। सल्फर डाइऑक्साइड मस्ट मीन्स पॉइजन। आज न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, रिएक्शंस हो गए, देन हमारे जो दीपावली के टाइम पे हम जो फटाके फोड़ते हैं, वो फटाके हो गए। ऐसे यानी चूहे मारने वाली दवा हो गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ होता है। वही सल्फर डाइऑक्साइड हम गाड़ी के धुएं से भी बाहर निकाल रहे हैं, वो भी हम 100% जला सकते हैं। इसका प्रूफ मैं आगे देता हूँ। नेक्स्ट, हाँ, ये हो गया PUC रिपोर्ट। आज आप देखते हो, आपके गाड़ी के आप PUC रिपोर्ट निकालते हो, पोल्यूशन PUC सर्टिफिकेट, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। हमने एक गाड़ी का टेस्ट किया है, उसमें ये बिफोर का टेस्ट है और ये आफ्टर का टेस्ट है। आपको लंबे से नहीं दिखाई पड़ेगा, आपके पास सॉफ्ट कॉपी वेबसाइट पे अवेलेबल है, पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड 60% रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से हम किडनीज और लंग्स के इश्यूज हम 60% ये दुनिया से कम कर सकते हैं। थैंक यू। बाद में है हाइड्रोकार्बन। आज जो हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, आपने कभी थोड़ा सा गौर करिए, पिछले 2-3 सालों में हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ रही है मार्केट में। ठीक है, हमें वो, अरे यार, हाँ, जूम अभी इधर का इधर, हाँ ठीक है, चलो चलो, ओके ओके, हो गया क्या? थोड़ा और जूम करिए तो होगा, होगा क्या? ऊपर करिए थोड़ा, ऊपर, हाँ ऊपर, ऊपर हो रहा है क्या?
दोनों उंगली नहीं हो रहा है, ठीक है जाने दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन है, पहले 446 ppm मतलब 446 ppm मतलब कण मॉलिक्यूल्स धुएं से बाहर निकल रहे थे, वही हाइड्रोकार्बन खाली 43 ppm निकल रहे हैं। मतलब 90% हम हार्ट अटैक कम कर सकते हैं, 90%। उसके बाद में है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दुनिया ये फॉर्मूला ढूंढ रही है, सैकड़ों देशों के पेट्रोलियम रिफाइनरीज के सभी साइंटिस्ट लोग ये फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं CO2 कम करने के लिए। आज CO2 जो था, ये आफ्टर का रिपोर्ट है, बिफोर का हाँ थोड़ा इधर करिए, हाँ अभी CO2 जो है वो 10.24%, हाँ CO2 जो है ये 10.24% है, यानी 10% है लगभग, ठीक है। वही CO2 अगर आप देखेंगे बस विदाउट एडिटिव 0.19% है। हम पूरा कैंसर को बंद कर सकते हैं, दुनिया से कैंसर को हटा सकते हैं, ऐसा ये प्रोडक्ट है इसके अंदर, ठीक है। आगे O2 ऑक्सीजन, O2 हाँ O2 जो है ऑक्सीजन पहले था 11.24%, अभी O2 है 20.28%, मतलब ऑक्सीजन बढ़ा, ऑलमोस्ट डबल। आज हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग आए हैं, कोणी कोणी वडाचे झाडं लावले सांगा बरं मागच्या 40 वर्षात? हां कोणी लावले वडाचे झाडं? गुलाबाचे झाडं लई लोकांनी लावले असतील बरोबर, शेवंतीचे झाडं वगैरे, ठीक है। वडाचे झाडं कोणी लावले? किसने? अब वड को क्या बोलते हैं सर हिंदी में? हैं? बर्गर हाँ ठीक है, जिसका भी पेड़, हाँ ठीक है हाँ ठीक है धन्यवाद। तो वो पेड़ हमने लगाया ही नहीं सर, हाँ तो हमारे बच्चों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमने कभी ये सोचा? जब हम आईसीयू में एडमिट होते हैं तो हम केजी के हिसाब से रेट देते ऑक्सीजन का, तो ऊपर वाले ने जो ऑक्सीजन बनाया वो कितना ख़त्म किया पिछले 50 सालों में, कितना टन ख़त्म किया, तो हमारा बनता कि नहीं उसको रिटर्न देना? अरे हम पूरा कंज्यूम करेंगे। तो वो संजीव रैना जी क्या बोल रहे पता है? हमारे बच्चों के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे? कुछ नहीं छोड़ के जा रहे। तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा। इसके लिए अगर ये एडिटिव इस्तेमाल लोग करेंगे, पूरी दुनिया जिस दिन करेगी उस दिन ऑक्सीजन डबल होता रहेगा एवरीडे। यानी पेड़ देंगे 10%, हमारी गाड़ी देगी 20%। आप समझ रहे? तो ऐसा ये प्रोडक्ट है। तो हम ये एडिटिव से कैंसर को 98% कम कर देंगे, हार्ट अटैक को 90% कम कर देंगे, किडनीज और लंग्स के इश्यूज 60% कम कर देंगे। ह्यूमिनिटी पावर, सर आपने कभी हाफसा बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं पानी निकालने वाला, उसको क्या बोलते हैं आप? हैंडपंप बोलते हैं, चलो इंग्लिश में हैंडपंप, चलो हैंडपंप है। आप जब छोटे थे ना तो आप है ना 100 मीटर से हैंडपंप से पानी लेके आते थे, कभी कभी मैंने भी लाया सर 100-150 मीटर से, ठीक है। आज मैं मेरे बच्चे को बोलूँ ना एक बाल्टी लेके जा तो और पानी भर के ला, तो वो नहीं लाएगा। चलो मैं बोला मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, वो लेके भी आएगा, और आने के बाद वो ऐसा करेगा, पापा मैं अभी नहीं करूँगा, बस हो गया, लाइक दैट। मीन्स क्या? उसकी ह्यूमिनिटी पावर कम हो गई है। तो आज मेरी बच्चों की ह्यूमिनिटी पावर कम हो गई है, मैं क्या करूँ वो मेरे पैसे का? अचार डालूँ क्या? उसकी तबीयत तो अच्छी होनी चाहिए ना, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी का कुछ। अरे मैं तो बोलूँ 25 साल पहले मैं ज़्यादा किराना दुकान में जाता था, आज मैं ज़्यादा मेडिकल में ज़्यादा जाता हूँ। बोलो सही कि गलत? हाँ, तो मैं चाहता हूँ 2 पैसा कम मिले, 2 पैसे धंधा कम मिले,
वो भी चलेगा, पर अपनी आने वाली पीढ़ी को अच्छा लाइफ मिले, इसके लिए प्रोडक्ट हमें मार्केट में लाना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज तो आपने सालों के रिसर्च करके एक अद्भुत प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट को उस तरह से डिजाइन किया कि वो हर व्यक्ति की पहुंच तक पहुंच सके, हर व्यक्ति उसको ले सके और अपने माइलेज अपने पैसे से लेके देश के किसान, देश का पैसा और धरती माता तक की रक्षा कर सके। इसके लिए सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर।